Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is MS Excel and Introduction. So let's start the chapter. Friends, MS Excel is an electronic spreadsheet program that helps us to enter numerical values or data into rows or columns. You can use these numerical entries for such things as calculations, statistical analysis and graphs. बच्चों MS Excel क्या है? ये एक प्रोग्राम है जिसमें आप स्प्रेडशीट के थ्रू रो और कॉलम के थ्रू अपने डाटा को दर्शाते हो. ठीक है, इसमें कैलकुलेशंस वगैरह इंक्लूड होती है और इसमें न्यूमेरिकल एंट्रीज जो होती है वो आपकी कैलकुलेशन को दर्शाती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ग्राफ्स को दर्शाती है. An electronic spreadsheet is used for analyzing, sharing and magnifying information for accounting purposes, performing mathematical calculations, buffeting, billing, report generation, etc. Tabs are included in the spreadsheet software to facilitate the making of charts, graphs, data analysis, etc. MS Excel is commonly used electronic spreadsheet software. The purpose of this chapter is to introduce you to MS Excel. Before learning to work on MS Excel, let us study about some terms related to it. बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होती है उसमें आप अपने डाटा को दर्शाते हो ताकि आप उसे एनालाइज कर सको और उसे आप अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सको. ठीक है, इसमें टैब्स भी इंक्लूड होती हैं जिसमें आप अपनी स्प्रेडशीट को अच्छे से दिखाते हो. ठीक है, उसमें आपके चार्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, ग्राफ्स और डेटा एनालिसिस भी यूज़ होता है. अब ये स्प्रेडशीट जो होती है वो हम किस में बनाते हैं? MS Excel में बनाते हैं, क्योंकि MS Excel ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी स्प्रेडशीट को अच्छे से दिखाता है. ठीक है, लेकिन MS Excel के बारे में जानने से पहले हम उसकी जो टर्म्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं. इसमें सबसे पहले आता है स्प्रेडशीट. Spreadsheet, the basic work area in an MS Excel 2007 workbook is the worksheet, which is also known as a spreadsheet. The term spreadsheet refers to an application software such as MS Excel, which allows tabular work with numbers and text, including mathematical calculations and graphic operations. Every spreadsheet consists of rows and columns in which data can be entered. These rows and columns intersect to form a cell. You can enter any type of data in a cell. An electronic spreadsheet provides more flexibility, speed, accuracy in comparison to a manually maintained spreadsheet. For example, if you change the numbers in a spreadsheet, you do not have to perform the calculations again. The spreadsheet does it for you. अब बच्चों, स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट एक एरिया होता है जिसमें आप अपना काम करते हो. ठीक है, ये एक वर्कशीट टाइप की होती है जिसमें आप अपने डाटाज को और वर्ड्स और नंबर्स को क्या करते हो? फिल करते हो. ठीक है, इसमें आपके रोज और कॉलम्स आते हैं और रोज और कॉलम जो होते हैं वो एक एक पर्टिकुलर सेल्स में क्या होते हैं? डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, अब इसका क्या यूज़ होता है? एक तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक स्पीड प्रोवाइड करता है और एक तरह की एक्यूरेसी ये प्रोवाइड करता है. जैसे आप मैनुअल स्प्रेडशीट बनाते हो उसके कंपैरिजन में ये आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है. ठीक है, नाउ यूजेस ऑफ MS Excel. MS Excel is used mainly for manipulating numeric data. We can use it for many other operations like using numbers. MS Excel can be used to easily and quickly tally sales figures, figure averages and summarizing performance numbers for entire department. बच्चों, हम इसके यूजेस जान लेते हैं कि MS Excel का यूज़ क्या होता है. सबसे पहले तो ये आपके नंबर्स को दर्शाता है. ठीक है, अब कोई एंटायर डिपार्टमेंट है, उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनका आपको कोई भी सेल्स टैली करना है या फिर आपको कुछ फिगर्स दिखानी है या फिर आपको उनकी परफॉर्मेंस को समराइज करना है तो आप इनके थ्रू कर सकते हो. ऑर्गेनाइजिंग डाटा. MS Excel provides various sorting operations to organize the entered data in a proper manner. बच्चों, एक तो ये आपके डाटा को प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज करना सिखाता है. ठीक है, आप मान लो किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनाते हो. ठीक है, और अगर आप उसको स्प्रेडशीट में दिखाते हो तो दोनों में बहुत ही क्या होता है? डिफरेंस होता है. ठीक है, आपको जो ऑर्गेनाइज डाटा होता है स्प्रेडशीट में वो आपको ईजीली देखने को मिल जाता है, जबकि आप लिस्ट में अगर आप उसको दर्शाते हो तो आप उसको अच्छे से देख नहीं पाते, उन्हें अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाते. नाउ क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट्स.
MS Excel provide an easy and efficient way of maintaining data in worksheet. ठीक है, अब आप डाटा के थ्रू अपनी वर्कशीट को अच्छे से क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उन्हें अच्छे से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. Formula and functions. MS Excel contains various built-in functions to work on data. We can perform any kind of mathematical calculations from the simplest equation to the complex formula. अब MS Excel के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूलाज लगा सकते हो उसमें, उसको अच्छे से फॉर्मेशन कर सकते हो. ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं वो बहुत ही ईजी हो जाती है. नाउ स्टार्टिंग MS Excel 2007. अब MS Excel को स्टार्ट कैसे करते हैं ये हम आगे जानेंगे. फॉलो दीज स्टेप टू स्टार्ट MS Excel 2007. Step 1, click on start button. Step 2, click on all programs. Step 3, click on Microsoft Office. Step 4, now click on Microsoft Office Excel 2007. An empty workbook टाइटल बुक 1 इज डिस्प्लेड इन द एक्सेल विंडो. बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, उसके बाद आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में. ठीक है, इस पर आप क्लिक करके आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे. तो इस तरह से आपकी जो शीट है आपके सामने ओपन हो जाएगी. ठीक है, इसे आप टाइटल बुक 1 के नाम से भी कह सकते हो. नाउ कॉम्प्यूफैक्ट. MS Excel is best known for its number crunching features. For example, you can use Excel to quickly tally sales figures, figure averages and summarize performance numbers for entire department. ठीक है बच्चों, हमने ऊपर भी पढ़ा था MS Excel क्या होता है, वो अपने नंबर क्रंचिंग फीचर के लिए अच्छा जाना जाता है. और इसमें आप एक डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं या उनकी जितनी भी सेल्स होती है उसको आप अच्छे से क्या कर सकते हो, टैली कर सकते हो, उनकी एवरेज निकाल सकते हो और उन्हें अच्छे से क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो. Now MS Excel 2007 स्क्रीन एंड इट्स कंपोनेंट. अब आपके सामने MS Excel की शीट ओपन हो गई है. अब उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ये हम जानेंगे. सबसे पहला आता है टाइटल बार. टाइटल बार इज ऑन द टॉप ऑफ द विंडो. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट एंड करंट प्रोग्राम. इट ऑल्सो कंटेन ऑल द 3 कंट्रोल बटन. अब आपके सामने ये टाइटल बार दिख रही है. इसमें क्या है, इसमें आपका जो MS Excel जो नाम है उसका वो डिस्प्ले हो रहा होता है और राइट साइड में आप देखोगे इसमें कंट्रोल बटन्स होते हैं. ठीक है, जिसे आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कैंसिल भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो. ठीक है, अब क्विक एसेस टूल बार के बारे में हम जान लेते हैं. क्विक एसेस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार एट द राइट ऑफ द ऑफिस बटन. The buttons such as save, undo, redo are displayed on it. This helps to do common tasks with just one click. It contains shortcuts for the commonly used commands like save, undo, repeat, etc. ठीक है, अब टूल बार के साथ आपको एक और बार यहाँ पे नजर आ रही होती है, उसे कहते हैं क्विक एसेस टूल बार, जिसमें सेव, अंडू, रिडू जैसे बटन आपको देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, इसके थ्रू आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, अंडू कर सकते हो और या फिर उसे रिपीट कर सकते हो. नाउ रिबन. द रिबन कंटेन्स द डिफरेंट मेन्यू टैब्स दैट कंटेन द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स ऑन इट. ईच ग्रुप हैज आइकन्स फॉर द एसोसिएटेड कमांड्स. इट कंटेन्स 2 parts, tabs and groups. Replace the traditional toolbars and means of earlier version of MS Excel. अब इसमें क्या है, रिबन में ये आपके जो पुरानी जो इसकी टूल बार थी उसको इसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया. ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं. इसमें टैब्स और ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपके अलग अलग क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं जो अलग अलग कमांड से एसोसिएटेड होते हैं. इस तरह की आपकी जो MS Excel की शीट होती है वो ओपन होती है, जिसमें सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड अप साइड में क्विक एसेस टूल बार. ठीक है, सेंटर में आपका टाइटल बार है. अब लेफ्ट साइड में आप देखोगे ऊपर की तरफ ऑफिस बटन है, उसके नीचे फॉर्मूला बार है और उसके नीचे एक्टिव सेल है. जो आपका सेलेक्टेड है उसको आप एक्टिव सेल बोलते हैं. उसके नीचे स्टेटस बार है. फिर नीचे की तरफ आपकी शीट टैब्स है, आपकी कितनी शीट्स उसके नीचे वो आपको यहाँ पे शो होती है. राइट साइड में आप देखोगे अपर की साइड में रिबन है. ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका रिबन होता है जिसमें आपकी अलग अलग आइकन्स होते हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं. और ये आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट है जिसमें आप अपनी शीट बनाते हो या फिर जनरेट करते हो. नाउ ऑफिस बटन. द फाइल मेन्यू कमांड सच एज न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, एक्सेट्रा आर डिस्प्लेड हेयर.
It also lists recent documents. Some of their commands include an expandable menu to provide additional option. ऑफिस बटन में क्या होता है, ये आपका इसमें आपकी फाइल मेन्यू दर्शाती है, या इसमें आपके जो कमांड होते हैं जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, इस तरह की आपकी जो कमांड्स होती है वो इस बटन में, ऑफिस बटन में आपको देखने को मिलती है। इसमें सारी आपकी रीसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट उसमें क्रिएट की थी उसकी आपकी लिस्ट होती है। जिस भी डॉक्यूमेंट में आप काम करना चाहते हो आप वहाँ जा करके उन्हें ओपन कर सकते हो। फॉर्मूला बार, इट डिस्प्लेज द डाटा और अ फॉर्मूला ऑफ सेलेक्टेड सेल. It is also used to enter or edit formula and cell data. फॉर्मूला बार में क्या होता है, आप अपना फॉर्मूला लगा करके आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें जो आपका सेलेक्टेड सेल है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप अपना फॉर्मूला एंटर भी कर सकते हो, उसे एडिट भी कर सकते हो और उसे डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका फॉर्मूला बार यहाँ पे आपकी स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। नाउ शीट टैब, it displays the name of the sheet. The active sheet name is displayed in bold letters. You can move from sheet to sheet by clicking the tabs. अब शीट टैब जो होती है आपके नीचे की तरफ होती है। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रही होती है। आप शीट 1 में काम कर रहे होते हो तो आपका जो डिस्प्ले होगा उसमें आपकी शीट 1 नजर आएगी। ठीक है, अगर आप शीट 1 से शीट 2 में शिफ्ट होना चाहते हो तो आप सिंपली शीट 2 पे क्लिक कर सकते हो, फिर आप शीट 2 पे काम कर सकते हो, और वापस अगर आपको शीट 1 पे आना है तो आप शीट 1 पे क्लिक करके आप दोबारा से शीट 1 पे आ सकते हो। ठीक है, वर्कशीट, a worksheet in a single page or sheet in Excel is also called a spreadsheet. By default, there are 3 worksheets in an Excel workbook. Switching between the worksheet is done by clicking on the sheet tab at the button on the स्क्रीन। अब वर्कशीट क्या होती है, एक सिंगल पेज होता है जिसमें आप काम करते हो। ठीक है, अब इसमें आपके बाय डिफ़ॉल्ट एक स्क्रीन में जो आपका वर्कशीट होती है उसमें आपके नीचे की तरफ क्या होती है, 3 शीट आपको पहले से मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसमें आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको पहले से ही वहाँ पे मिलती है। अब उसमें क्या कर सकते हो, आप एक शीट से दूसरी शीट के बीच में क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो जस्ट उस पर क्लिक करके। नाउ एक्टिव सेल, द करंटली सेलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एन एक्टिव सेल. The entered data is displayed in the active cell. An active cell is highlighted with black border around it. एक्टिव सेल क्या होता है बच्चों, एक्टिव सेल एक ब्लैक बॉर्डर से जो ऑलरेडी हाईलाइटेड होता है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है, जिसमें आपको अपना डाटा एंटर करना होता है। आप कोई भी फिगर एंटर करना चाहते हो, वर्ड एंटर करना चाहते हो तो आप उस एक्टिव सेल में एंटर कर सकते हो। स्टेटस बार डिस्प्लेज करंट स्टेटस ऑफ द सेल एंड जूम ऑप्शन। स्टेटस बार आपका इस तरह से दिख रहा होता है। ठीक है, इसमें आपका आप जूम इन कर सकते हो या फिर आपका जो सेल है उसका स्टेटस इसमें आपको देखने को मिलता है। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। ठीक है, अब न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट करें वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक इन एक्सेल 2007. Step 1, click on the File tab. A menu will appear. Step 2, click on the New option. New Workbook dialog box will appear. Step 3, click on the blank workbook in the templates list. Now click on Create. It will create a new blank workbook for you to work. देखो आपने MS एक्सेल तो खोल दिया। ठीक है, अब आपको न्यू वर्कबुक पे काम करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइल टैब में जाओगे। ठीक है, जो आपके लेफ्ट कॉर्नर में अपर साइड पे नजर आ रहा होता है उसमें आप जब जाओगे तो एक मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा, उसमें आपको न्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, एक न्यू वर्कबुक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक पे जाकर के क्लिक करना है। ठीक है, और इस तरह से आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक जो है वो अपीयर हो जाएगी जिसमें आपको काम करना है। एंटरिंग डाटा इन सेल्स, अब सेल्स में अपना डाटा कैसे एंटर करें ये हम आगे जानेंगे। इन एन एक्सेल वर्कशीट वी कैन एंटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और टेक्स्ट बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन अ सेल and begin typing. The data we type appears in the active cell and in the formula bar. While typing, 2 buttons, cancel and enter, appear to the left of the formula box. The cancel button is used to cancel data entry before pressing the enter key. We can also use the escape key
द एंटर बटन इज़ यूज टू कंप्लीट द डाटा एंट्री। सबसे पहले आपको सेल, जो आपने सेल जिसमें आपने अपना डाटा एंटर करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने जब सेलेक्ट कर लिया, आपको दिख रहा है वहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ, तो आपको उसके अंदर अपना नंबर या फिर अपना जो भी वर्ड है उसको आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है। अब आप देखोगे जैसे जैसे आप सेल में टाइप कर रहोगे ना, आप ऊपर जो फॉर्मूला बार होता है ना, उसमें भी आपका जो डाटा है वो भी आपका एज इट इज़ टाइप हो रहा होता है, ठीक है। चाहे आप नंबर उसमें वो डाल रहे होते हो या फिर आप कोई वर्ड डाल रहे होते हो या फिर टाइप कर रहे होते हो, ठीक है। जब आप टाइप कर रहे होते हो तो उसमें कैंसिल और एंटर का बटन आता है, कहाँ पे, जहाँ पे आपका फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। अब आपको उसको कैंसिल करना है तो आप सिंपली कैंसिल कर सकते हो, अगर आपको उसको एंटर करना है तो आप उसको एंटर कर सकते हो, ठीक है। आप उसको चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, और अगर आपको उससे बाहर आना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एस्केप भी कर सकते हो। सेविंग अ वर्कबुक, we can save our workbook into the memory of the computer so that it can be used or edited in the future. Follow these steps to save your workbook. Step 1. Click on the Office button. A menu will appear. Step 2. Click on the Save or Save As button. Save As dialog box will appear. Step 3. Click on the file name text box and type a name for your file. Step 4. Click on Save button. The Excel saves your workbook and the new file name given by you appear on the title bar. अब आपने अपनी वर्कशीट पे काम किया, अब आपको उसको सेव करना है ताकि आप फ्यूचर में अगर आप उसको दोबारा से ओपन करना चाहो तो आप उसको क्या कर सकते हो, दोबारा से ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऑफिस बटन में जाना है, ठीक है। उसके बाद एक मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव और सेव एज बटन पे, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा आपकी फ़ाइल का नाम, कि आपको उस फाइल को क्या नाम देना है। आप उस फाइल को कोई भी नाम दे सकते हो जो भी आप चाहते हो, ठीक है। फिर आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एक्सेल फाइल है वो आपके वहाँ पे सेव हो जाएगी। नाउ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, द फाइल वर्कशीट दैट इज क्रिएटेड एंड सेव्ड बिफोर कैन बी ओपन्ड व्हेन एवर यू नीड। फॉलो दीज स्टेप टू ओपन अ सेव्ड फाइल। अब आपने अपनी फाइल सेव की, ठीक है। अब मान लो आप एक हफ्ते बाद आए या 2 दिन बाद आए, आपको वो फाइल रीओपन करनी है, तो आप कैसे करोगे। स्टेप 1. क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, अ मेन्यू अपीयर्स। स्टेप 2. क्लिक ऑन द ओपन बटन, इट विल ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। स्टेप 3. क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फाइल दैट यू वांट टू ओपन। स्टेप 4. क्लिक ऑन द ओपन बटन, द फाइल ओपन्स इन द प्रोग्राम विंडो। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, ऑफिस बटन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा और फिर आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। ओपन बटन आपके सामने अपीयर हो जाएगा, एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपकी फाइल का नाम वहाँ पे शो हो रहा होगा, अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। उस फाइल के नेम पे जाकर आपको क्लिक करना है और फिर आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो फाइल है, जिस नाम से आपने उसको सेव किया था, वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। Now closing a workbook. A workbook can be closed after completing your work. By closing the workbook, you cannot exit from MS Excel, but only the current workbook will be closed. Follow these steps to close a workbook. अब बच्चों आपने वर्कबुक पे काम किया, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो अब आप उसको कैसे क्लोज करोगे। स्टेप 1, click on the office button, a menu will appear. Step 2, click on the close option, the current workbook closes. ठीक है, इसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पे जाना है, आपके सामने एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा और फिर आपको उसमें क्लोज ऑप्शन में जाना है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। एग्जिटिंग फ्रॉम एक्सेल, अब आपको एक्सेल से एग्जिट करना है। कैसे एग्जिट करेंगे, फॉलो दीज स्टेप्स टू एग्जिट फ्रॉम MS Excel completely. Step 1, click on the office button. Step 2, click on exit Excel. If you have not yet saved your work, Excel prompt you to do so before exiting. Step 3, click on yes to save. The Excel program window close completely. ठीक है, अब आपको एग्जिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाना है दोबारा से और फिर क्लिक करना है
एग्जिट एक्सेल पे, ठीक है। अगर आपने अपनी फाइल सेव नहीं की होगी तो आपसे पूछेगा कि आपको अपनी फाइल सेव करनी है। अगर आपको सेव करनी होगी तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अगर आपको नहीं करनी होगी तो आप नो पे क्लिक करोगे। इस तरह से आपका डाटा जो है, अगर आप येस पे करोगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा और आपकी जो एक्सेल जो प्रोग्राम था, जो फाइल थी, वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ब्रेन टीजर, वाई डू वी कॉल अ एक्सेल फाइल अ वर्कबुक। बच्चों, हम एक्सेल फाइल को वर्कबुक क्यों कहते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे वर्कबुक कहते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। हु एम आई? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट आंसर। आई एम अ सॉफ्टवेयर यूज टू मेक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट ऑन द कंप्यूटर। बच्चों, आपने इस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट को बनाने के लिए कंप्यूटर में, तो इसका आंसर आपको देना है। सेकेंड, आई एम द स्मॉल रेक्टेंगल इन विच यू एंटर डाटा। एक स्मॉल रेक्टेंगल जिसमें हम अपने डाटा को एंटर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। थर्ड, आई एम द एक्सटेंशन ऑफ ऑल द एक्सेल फाइल्स। बच्चों, मैं एक्सटेंशन हूँ सारी एक्सेल फाइल का। अब ये क्या होता है, इसका आंसर आपको देना है। नाउ रीटेक। MS Excel 2007 is an electronic spreadsheet program. The basic work area in an MS Excel 2007 workbook is the worksheet, which is also known as a spreadsheet. Every spreadsheet consists of rows and columns. The ribbon contains the different menu tabs that contain the group of related commands on it. Data can be entered in an Excel worksheet इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और टेक्स्ट। बच्चों, इस चैप्टर में हमने जाना कि MS Excel क्या होता है। इसमें हम स्प्रेडशीट बनाते हैं जिसमें हम अपने डाटा को क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है, और सारी कैलकुलेशन भी हम इसके थ्रू करते हैं। अब इसमें स्प्रेडशीट होती है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं और उसमें हर रो और कॉलम को एक सेल्स के थ्रू क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें रिबन्स होती हैं जिसमें डिफरेंट मेन्यू टैब्स कंटेन होते हैं जिसमें अलग अलग उनके क्या होते हैं, काम होते हैं, और डाटा को हम एक्सेल वर्कशीट पे एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ numbers and text. So children, I hope you understood the chapter. Now you have to revise and practice the exercise yourself.